اچھا نا ہم عید پہ جب اتنا تیار ہو کے اتنی اچھی اچھی تصویریں لگاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ کہ اس کے بعد کبھی ہمیں نا نظر بھی لگ جاتی ہے, ہم اتنے خوش ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ تین چار دن اتنی آپ کی فیسٹیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں, آپ کے ڈنر چل رہے ہوتے ہیں, لوگ آنا جانا, اور اکثر ایسا ہوتا ہے پھر لوگ اس کی بات کرتے ہیں مجھے نزلہ ہو گیا ہے, زکام ہو گیا ہے. کچھ میری ایک ایسی فرینڈ ہے وہ دنیا کی ہر گند بلا چیز کھائے گی, جب اس کا پیٹ خراب ہو وہ کہتی ہے مجھے نظر لگ گئی ہے. مجھے کیوں نظر لگے گی, تو مجھے بتا تجھے کیوں نظر لگے گی. خاندان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کچھ مجھے نظر لگی. میں نے کہا اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں انسان کے, ہر چیز نظر پہ نہ ڈالیں, بٹ یس نظر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں تو اکثر شوز میں بھی کہتی ہوں کہ آپ جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب بھی تصویر ڈالیں نا اتنی اچھی, اگلے دن یا اسی دن لڑائی بھی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ جو ہے نا, تو اس لیے جب کسی کی تصویریں دیکھ کے اچھا لگے, اور اب وہ اگر خود لگانا بھول گیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ تو خود جا کے نیچے لکھیں دیکھ کے بولے ماشاءاللہ. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر ہم جو ٹی وی کے لوگ ہیں یا جو خواتین ایکٹیو ہیں تو ان کی صحت متاثر ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کا سب سے زیادہ شاید ہم سب سنتے ہیں آپ میں بڑا اسٹیمنا ہے, آپ میں بڑی ہمت, آپ مینج کیسے کر لیتی ہیں. بیوی آپ بھی تو پورے گھر کو مینج کر رہی ہیں. ہم اگر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یا ٹی وی پر آتے تو ہماری چیزیں دکھتی ہیں, تو آپ بھی تو وہی کام کر رہی ہیں, آفس جاتی ہیں, 9 to 5 کی جاب ہے, پھر بچے ہیں, گھر ہے, پورا ہر عورت کرتی ہے. بس کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ آتے ہیں شاید ہماری چیزیں زیادہ اپنے آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا سیکھیں, جو خواتین میں کہتے ہیں آپ لوگ خود بھی اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. اور اچھی بات ہے کہ ینگ رہنا اور اچھے کپڑے پہننا اللہ نے جب ہمیں یہ دیا ہے تو ہم کیوں نہیں کریں. تو آپ کو جو میں تو کہتی ہوں کہ مجھے کسی کی تعریف نہیں چاہیے, مجھے کسی کی اچھی باتیں چاہیے. اگر میرا دل خوش ہے اور میں مطمئن ہوں اور میرا شیشہ کہہ رہا ہے کہ تم پیاری لگ رہی ہو, بس میرے لیے وہی بہت. اور اگر آپ کے بچے بول دیں مما بہت پیاری لگ رہی ہیں تو وہ ایک چاند لگ جاتا ہے, اور بس پھر دنیا جائے بالکل. تمہارا شیشہ کہہ رہے تو بہت پیاری لگ رہی ہے, میاں کہ یار کیا ہے آج کل زیادہ بہت گہری لگا لی ہے, افیکٹ ہوتا ہوگا کیوں کہہ رہے ہیں. میں نہیں سنتی. آپ کی بچی آپ کی تعریف کرتی ہے؟ میری بیٹی ہاں ماما بہت اچھا لگ رہا ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. میرے تو دوست وہ سب کہتے ہیں اس میں اتنی انرجی ماشاءاللہ جب آپ بات کریں گے ہائے کتنی اچھی, ہائے مت کیا کریں, آپ کو نہیں پتا آپ محبت میں کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو بہت سے لوگوں نہیں معلوم کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں. آئی تھنک بس دیکھو یہ نیچر ہے, شوق ہے. کوئی چیز میں اپنے اوپر تاری نہیں کرتی. ہمارے بھی تو خالہ لوگ ہیں, پھپھی ہیں, چچی ہیں, وہ کتنی ایکٹیو ہوتی ہیں, وہ میڈیا میں نہیں ہے, لیکن کوئی مہندی ہو جائے گھر بجانا شروع کر دیں گے تو میڈیا آل اوور پاکستان لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جو باقی دعائیں, ایسے لوگ نہیں جو دعا دیتے ہیں. کس کی دعا دیکھو اچھے برے سب ہے بالکل ہے, نظر باہر کے, مگر یہ کہ ٹھیک ہے آپ خود اپنی بھی کر لیں. جیسے ہم اپنے بچوں کی پکچرز نہیں سے لگا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میاں بھی منع کرتے ہیں کہ نظر لگتی ہے, سارے بڑے منع کرتے ہیں, میں کہتی ہوں کائلی جینر اپنی بچی کی تصویریں کیوں لگا رہی ہے یار. نظر کا تو اتنا ہے مدیحہ, اتنا ہے نظر کا. مجھے یاد ہے جب میں انڈس پہ تھی نا تو میں نیل پالش لگائی تھی, تو جو نیوز کاسٹر تھی, میں ٹائم تھا میرے پاس, تو میں نا ہاتھ میں اور کون سی تھی اس کی جو موٹی شیشی نہیں تھی, میڈورا کی نئی خریدی تھی میں نے بالکل. میں بیٹھ کے وہ کہہ رہی ہے امبر آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو. میں کہا تھینک یو. میں جھوٹ نہیں بول رہی, یوں رکھی ہوئی ہتھیلی میں لگا کے نا, میں یوں پکڑا ہوا تھا کڑک ہتھیلی کے اندر یوں, بس نیل پالش کے پکڑتے ہیں, نیل پالش پکڑی ہوئی نا یہ یوں رکھی ہوئی ہے میں نے, اور جلدی لگائی کیونکہ سیگمنٹ سٹارٹ ہو رہا تھا. لٹرلی اس جو میں دیکھ رہی تھی نا, ہاتھ پہ کریک ٹک ٹک آواز سے مجھے بھی تک یاد ہے. اس کے بعد پوری ٹوٹی, پوری گری, اور اس میں سے نیل پالش میرے ہاتھ پہ. یہ سوچو مطلب نظر کہتے ہیں پتھر کو بھی, پتھر پہاڑ کسی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے, ہر ایک کی نظر نہیں لگتی, کسی کی نظر ٹوک ہے. کوئی نہ کوئی چیز آپ گر جاؤ گے, چپل ٹوٹ جائے گی, چپل اپنی بھی لگ جاتی ہے, پیار کی بھی لگتی ہے. چاروں کو پڑھ کے پھونکو اور اللہ کے حوالے. اچھا مجھے بتا عیدیاں, کیونکہ اب تو آپ لوگ عیدی دینے والوں میں آپ کا شمار ہو گیا, لیکن آپ لوگ کو اپنی عیدیاں کتنی اکٹھی ہوئی, آپ کو سادیہ جی کتنی عیدی اکٹھی؟ مجھے اس دفعہ کم عیدی دی گئی ہے, میں سب سے چھوٹا ہوں جب کہ گھر کا, لیکن مجھے کم دی ہے اس دفعہ عیدی. عدنان نے دی ہوگی نا, نہیں عدنان کی عیدی کو میں عیدی نہیں کرتی. وہ عیدی نہیں ہے, نہیں دیتے عیدی, تو عیدی ان سے ڈبل لیتی ہوں, تو وہ عیدی کو میں کنسیڈر نہیں کرتی. میرے گھر والوں نے اس دفعہ عیدی کم دی, مجھے بھی خیال آیا کیونکہ میرا اور میں نا آپس میں جب گنتے تو پھر ہمارا مقابلہ ہوتا ہے. مما میری ذات تو وہ میرا بھی اس دفعہ 30-40 کراس کر گئی تھی, اور میرے ذرا انڈر 20 تھے. اگر عدنان کی ملا رہے تو پھر میں آگے ہوں.
अभी होता है ना कि चलो बड़े हैं, बच्चों को दे दिया, बहुत से समझते हैं चलो, लेकिन मैं तो उनके घर का छोटा हूँ ना, और मैं छोटी जाऊंगी भाई, क्या है ऐसे। हाँ, छोटे हमेशा छोटे रहते हैं। हम तो देने वाले अब आ चुके हैं उस लिस्ट में, अब देते जाए, बस देते जाए, नेवर एंडिंग। नहीं, देने वालों में तो हम भी हैं। मुझे बस मेरे ससुर ने दी, जब उन्हें 5,000 दी, मैंने कहा डैडी अच्छा हुआ, मैंने कहा बड़ी खुशी, मैंने कहा अंदर से जो बाकी जब ऑरेंज नोट निकल रहा होता है ना, ऑरेंज नोट जो 5,000 का आपके हाथ में आता है और ईदी आती, फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे दिए 500। मैंने कहा भाई आपके ये जो 500 है ना, ये मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, कीमती है। मेरे सर पे हाथ रखा, प्यार किया, और फहीमा की ईदी, मैंने कहा मेरी भी ईदी। तो वो अंदर की ना वो बचपन याद आ जाता है आपको, जो अब्बू का वेट करते थे कि तैयार होके आना और अब्बू ने आपको उनको सलाम करना है और ईदी लेनी है, तो वो भाई से वो वाली मुझे मगर ट्रेंड कितना हो गया ना। अब देखो जैसे जो भी है, अब जाहिर सी बात है लेते हुए 1000, मतलब अब 200 तो रही नहीं है। क्यों? अब आप जब करने है वो भी है, देखो, मगर मैं कहती हूँ ईद है ना, इतने सब लोगों को देना होता है, इतना मिलते हैं। जब आप देखा जाए तो हम भी इतनी मेहनत से आप कमाते हैं, और रमजान में ज़कात भी निकालना अच्छा खासा खर्चा होता है। लेकिन जब आप 500, 1000 का ट्रेंड, तो मैं समझती हूँ कि 200 एक तो एक जेस्चर है, जैसे हमारे बड़े ऐसे ही देते हैं ईदी। हाँ, नहीं लेकिन यहाँ 500 जब दे रहे होते हैं हर कोई 500, 1000, तो वो तो आपका अच्छा खासा। मैं कहती हूँ अल्लाह, तो ये मतलब खैर अल्लाह फिर दे बरकत, मतलब मगर आप कर सकते हैं कम। अच्छा, मैं क्या करती हूँ मध्य इसके लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ईद के थर्ड डे सब मेरे कजिन्स और उनके बच्चे, तो और मैं अब देने वालों में से हूँ, तो मैं ना सबके लिफाफे लिफाफे, और ये मेरी कोई हर साल की एक प्रैक्टिस है, तो मैं साल में वो बजट निकाल के ना अलग कर देती हूँ कि यार ये मेरा इसका है, और अलग करके वो मुझे मजा आता है कि उनके मैंने लिफाफे बनाए, उनके ऊपर सबके नाम लिख दिए। तो क्योंकि अब वो कजिन्स को भी देना, उनके बच्चों को भी देने, और फिर मुमानी मामू से हमें मिलता है। तो इस अगली दफा के लिए हमने ट्रेंड किया यार बड़ों को हम क्या ऐसे करें। अच्छा, फिर बड़ों को क्या करते हैं? बड़ों के लिए अब हमने सोचा कि हम उनके लिए सूट या कोई ऐसा कुछ ऐसी, ये तो मैं तो सब बड़ों के मेरी अम्मी जो है वो क्योंकि बड़ी हैं, तो वो अपने भाई बहनों को देती हैं, तो उनके भाई बहन का वही वाला फील आता है जो फहीमा ने बोला। तो वो अक्सर मेरी खाला रोज आती हैं कि हमें तो यही, मतलब वो 500 रुपए या 200, 300 जो भी उनको देना होता है वो देती हैं। तो मेरी अम्मी जो है वो अपने हर बड़े बच्चे को, जैसे खाला है, मामू है, उनके कजन्स है जो शादीशुदा है, तो वो लोग बड़े ना उसको नेमत की तरह देख रहे होते हैं, दामादों को तो उसके, और हमारी लाइन लगती है। तो जैसे कि अम्मी सबसे बड़ी हैं, तो वो सब पहले बच्चों को देंगी, तो सबसे आखिरी में मैं खड़ी होती हूँ और सबसे आगे मेरा बेटा खड़ा होता है, क्योंकि बच्चों में, और अब क्योंकि नवासा नवासी में मेरे बच्चे हैं, तो हम सब लाइन से खड़े होते हैं, और फिर सबको 7-7 दफा सलाम करना होता है, और सलाम करते हैं। और मेरी जो खाला है बीच वाली, अंबर खाला है, उनकी पिक्चर है, तो कहती है सही से सलाम करो, सही सलाम नहीं करोगी तो आधा नोट काट काट के दूंगी मैं। वो इतना तंग करती है, उसके बाद वो सब चिढ़ जाते हैं। अच्छा, मुझे ना, क्योंकि हमारे लाहौर में हमारी फैमिली बहुत छोटी है, तो लेकिन जब मैं आई शादी के बाद मैंने देखा कि यार ईदी तो बड़ी जबरदस्त ईदी इकट्ठी होती है, तो ना मैं गिल्ट में आ जाती, कोई ज्यादा पैसे देते हैं, प्रेशर में आ जाती है, वो अब इनको ये पूरा करना है। अच्छा, मैं इनके लिए गिफ्ट लेकर मुझे इतनी ईदी दे दी, कोई पैसे दे रहा हूँ, तो मैं कहती नहीं अरे 500 ठीक है, तो कहते क्या हो गया भाई, तुम्हारी बहू हो, तुम्हारी बेटी हो, तुम्हें 500 पागल। अच्छा, मेरे ससुराल में क्या हुआ कि जब बच्ची हुई ना, तो वो बहू की ईदी खत्म हो गई, तो मैंने बड़ा शोर मचाया ना, मैं पहली बहू, मैंने कहा भाई बहू बता बच्चे क्या हो गया, तो मेरी उम्र क्या बड़ी हो गई, नहीं मैं तो हमेशा लूंगी। तो उसके बाद शायद मैंने विंडो खोल दी आने वाली सारी बहुओं के लिए, बहू को मिलेगी। ससुराल वालों ने तो मुझे बड़ी मेरी तो इस दफा मतलब गई थी अपनी सास से भी मिलने, मतलब एक सास से, तो उन्होंने भी ईदी दी, तो उतना मतलब ना वो आंखों में आंसू, जो भी जेस्चर, हाँ कितना प्यार करती है वो, कॉर्डियल उनसे है ना। हाँ, मैं जाती हूँ, मिलती हूँ, कुछ चाहिए होगा, मम्मी चाहिए आपको, मैंने अपनी मम्मी को मम्मी 1, उनको मम्मी 2 बोलती थी, तो मैं कहा आपको चाहिए, कहते हैं हाँ बेटा वो बिल्कुल ये कर देना। भी मैं कल अलीज़ा से कहा तो जाओ जाकर, उनका टीवी सही नहीं हो रहा, जाके उनको आ नहीं रहा, मेरी बड़ी बेटी लगवा कर गई टीवी की, दादी आप देखा करो टीवी, तो वो मेरा है उनसे। हाँ, तो अच्छी बल्कि होना भी चाहिए, और गिफ्ट देने चाहिए। आपको ऐसे कितनी ईदी इकट्ठी हुई आपने बताई नहीं? यार मेरी कितनी हुई ऐसे, इस दफा मैंने इतने काउंट नहीं किया, लेकिन सबसे तगड़ी मम्मी देती हैं, तो तकरीबन बाकी फुप्पियाँ भी दे देती हैं और मुमानी देती हैं, ये लोग देते हैं बस, ठीक है ना। तो तकरीबन अच्छा, ये बता दें सबसे ईदी कितनी मिली?
सबसे ज्यादा ईदी? हाँ, मम्मी देती हैं। हाँ, मम्मी सबसे ज्यादा ईदी देती हैं, और उसके बाद फिर 500-1000 मिलते हैं। मम्मी का डिफरेंट होता है। मुझे मिली थी तकरीबन 12,000, और मेरे बच्चों की, एक बच्चे की जो बनी थी, अब लोग देख के बोलेंगे ज्यादा करिए, लेकिन वाकई में एक बच्चे की 34 तो मैंने तो क्या कर माँ बैंक में रख लिया। माँ बैंक में रख लिया। भी यही किया, मैं कहा मेरा माँ से अच्छा बैंक नहीं होता, देखो ये डबल करके दे दूंगी, आपको आइडिया नहीं है। तो अपने बाबा को, बाबा हर बार ये करती है, अपने बैंक में जमा करवा देती है मेरी ईदी। तो फिर आगे से बाप ये कह रहे, बेटा मुझे उसके बाद लाखों की शॉपिंग होती, वो भी तो मम्मा के बैंक से जाते हैं ना पैसे बेटा। मम्मा ने, बट मैंने अपने गुल्ले में डाल देते पैसे। अच्छा, मेरी बेटी तो बड़े मजे का सीन हुआ कि उनको वो दिल, उनका अब बड़ी हो रही है ना, तो अब ज्यादा उनके साथ छेड़छाड़ी भी नहीं कर सकते ना, उनको समझ है। तो उनको हमने 1000 रुपीज दे दिए और 100 करके बताए कि देखो ये 10 नोट हैं, ये है, उनको समझाना पड़ा। अब वो रोज आना 100 रुपीज लेके स्कूल जाके वो चिप्स खरीदती है। और अपना पर्स खुलता है उनका, एक मैजिकल पर्स है जो 2 मुंह की तरह से दोनों तरफ से खुल जाता है, और वो हर वक्त उससे कोई ट्रिक चलती है, और 100 रुपीज आज मेरे पास पैसा। और मेरा सोचो इम्पोर्टेंट ईद होती भी बच्चों की यार। ये बातें कर रहे हैं, मैं अपने बचपन में चली गई, 5000 दिए ना ईदी, कहती मम्मा 1 नोट। मैं कहा अच्छा रुक जाओ, फिर मैंने खुले मैंने सारे 100 रुपीज, ये मजा आ गया, सो मच। मम्मा हैंडी में नहीं आ रहे इसमें। आपने अच्छी टिप दे दी, आइंदा नहीं ये जो मैं जब छोटी सी थी, जब मुझे कोई बड़ा नोट देता था तो मैं अपनी अम्मी ले लेती थी कि ये घुमा देगी। अब माँ बने तो अंदाजा है कि गुम ना जाए, जाया ना हो जाए, कोई छीन ना ले, फिर रोना पीटना मुश्किल। तो ना मैं कहती प्लीज 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 बड़े नोट ना दे, खुले दे। मम्मी रख लेती है, मम्मी कहती थी यूं देखती थी, चुप कर। नहीं, मम्मी कहती थी जो जितना देना हमें बताओ, तो मुझे भी देना पड़ता है। हम तो बहुत सीधे थे, चाहिए हर चीज में। अच्छा मम्मी ये इतनी जमा हो गई, दे दिया। अच्छा वैसे क्योंकि इकलौती औलाद है, तो इकलौती औलाद को ना बाकी भी जगह चाहिए, उनकी तो एक ही बेटी है ना, तो उसको ज्यादा भी। मैं सुनती थी कि मेरी बेटी को कभी कम मिलते हैं क्योंकि उनके तो 3 बच्चे, लेकिन हमें तो यही पैसे हर सबको देना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 500 रुपए मिले तो वो थोड़ी करेंगे कि 150 रुपए देंगी, वो फिर 500 रुपए देती, तो कभी कभी बेचारी खसारे में भी होती थी। ये वैसे नुकसान है। जैसे हमारी एक है तो हम अच्छा खासा हमारा जो है ना वो रिकवरी जाती है। नहीं, रिकवरी कहाँ हो जाती है, फिर हमारी रिकवरी बड़ी बुरी हो जाती है। लेकिन इनके घर वाले जरा वो करते बड़ी, अब मम्मानी और हमारी ये बड़ा है कि दामाद की ईदी, मतलब किसी की हो ना हो, तो वो एक अलग सा अदनान का जो मुझे लिफाफा मिलता है, और मैं फिर दिखाती हूँ, चोरी कर ले वो लिफाफा, चाहे उसमें 500 रुपए हो चाहे 200 रुपए, जरूरी नहीं बड़ी, लेकिन वो उसमें अदनान हाँ लिखा होता है ना, तो वो इतना अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ अदनान, ये आपके लिफाफे देखे, मैं आपके सामने खोल रही हूँ, ये मम्मानी ने दिए, ये मामू की खाला देके गई, आपका जोड़ा देके गई, तो वो बड़े वो खुश होते, कहते हैं यार ये क्या कितनी अच्छी बात है तुम लोग की। अच्छा, आप लोग अपनी ईदी पे खर्च किधर करते हैं, मुझे ये बताएं। ईदी खर्च क्या बच्चों पे हो जाती है? बच्चों पे खर्च कुछ इसके डिफरेंस नहीं रहती? नहीं, आप क्या करते हैं? मेरे तो बच्चे खुद अपने खर्च कर रहे हो। अरे ब्रेकफास्ट करने चले जाए, मम्मा से पूरा चले, मुझे आज ये खाना है, मुझे सुशी खानी, मैं कहा ये सब ईदी के पैसों से। हम लोगों ने भी यही किया, बच्चों को ना जो एक चंक होता है वो निकाल के उनकी मर्जी के उनके गिफ्ट से ला देते हैं ताकि उनको अच्छा लगे, और एक अच्छा अपनी जो मैं, उसामा, हमदान, जिमल, हम 4 अपना एक जो है लंच या डिनर करते हैं जो उनको पसंद हो। तो सुशी से याद आया कि वो ही सब खाते हैं, तो वो सब लेके हम गए, हमने अपना स्पेंड किया। वो एक टाइम एक दिन होता है जो हम ईदी उस पर खर्च करते हैं, तो वो, और आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम जरूरी ईद पे, कि जब ईद, और आज भी ना इतनी बड़ी स्माइल होती है जब हम इतना तैयार व्यार होके जब वो आइसक्रीम पकड़ते, लगता है ये ईद पूरी हो गई। और उसमें जो स्पेशली क्योंकि ईद पे जो ईदी मिलती थी, मुझे याद है जब उसके बाद ईदी मिल गई, फिर क्या कर रहे हैं सब बच्चे भाग रहे हैं, तो उसमें फिर वो वाली जो आइसक्रीम, जो महंगी वाली आइसक्रीम होती है ना, वरना रोज आइसक्रीम खा रहे ऐसा नहीं है, वो जो 5 वाले अब आता था ना आइसक्रीम वाला, वो भी इतने म्यूजिक ऊंचा लगा के खड़ा हो जाता दरवाजे पे, उसको पता था कि इस घर के बच्चों को कोई तकलीफ है, ये बाहर जरूर आएंगे, एक जैसी नेचर सब देखो कुदरत। तो उसके बाद फिर हम वो जो महंगी वाली आइसक्रीम होती थी ना, जो अब रोज नहीं इतना एंजॉय किया कि हम सब ने अपने बचपन में ये एंजॉय किया हुआ है कि हम ना डब्बे खोल खोल के अपने जूते देखते थे, है ना, कि कल पहनने हैं, कपड़े देखते हैं, वो नई चीज होती है ना। अब इतनी हर चीज हम देखते हैं, वैसे रैंडम हम देखते हैं। मैंने मीरब को देखा 3 दफा वो उठी,
मेरे कपड़े रेटिंग गुस्सा का है यही रखा है ना बस सादिया ये अल्लाह पाक ना सलामत रखे हमारे बच्चों की ईद, हमारी आप देखने वालों की ईद आने वाले हर दिन के साथ अल्लाह करे कि कभी कोई गम ना हो, हर दिन आपका इतना प्यारा हो कि आपको ईद ही लगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।